اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری کی ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام کا تمام جہان ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رمضان ہے ایمان میں آپ کا میزبان اطہر جعفری اپنے معزز مہمان خطیب در حسین، معروف و مقبول عالم دین، دنیائے خطابت کا ایک معتبر نام، حضرت علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب کے ہمراہ آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، ہمارے درمیان شہر کراچی ملک پاکستان کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت لب و لہن کے منقبت خان، نوحہ خان، سوز خان، جناب سکندر زیدی صاحب ہمارے درمیان بھی آج تشریف فرمائے ہیں۔ السلام علیکم سکندر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ آپ کو حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہاں حاضر ہوئے، تشریف لائے، ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں۔ جناب سکندر زیدی صاحب، ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں۔ پروگرام رمضان ہے ایمان، اور ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے مستقل رجب سے لے کر اور شعبان اور اب رمضان المبارک میں بھی اسی طرح لائیو براڈ کاسٹ کے ذریعے نامور عالم دین، نامور منقبت خان، نامور شعرا جو ہے وہ مستقل بارگاہ امامت میں، بارگاہ معصومین میں اپنے روحانی بیان سے آپ مومنین کے قلوب کو منور ہی فرما رہے ہیں، اور بارگاہ معصومین میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے ہیں۔ شہزادین تمام شرکائے جشن کی اور ہمارے تمام مہمانان گرامی کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ کب، کیسے، کہاں، کس کو خبر، کون ہے، کیا ہے۔ قبلہ کی اجازت سے ناظرین کی خدمت میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ کب، کیسے، کہاں، کس کو خبر، کون ہے، کیا ہے، ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے، ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے۔ ارے 14 کو ہے یہ ناز کے بندے ہیں وہ تیرے، 14 کو ہے یہ ناز کے بندے ہیں وہ تیرے، اور تیرا یہ شرف ہے کہ تو 14 کا خدا ہے، تیرا یہ شرف ہے کہ تو 14 کا خدا ہے۔ قبلہ، ہم نے مستقل علماء کرام سے رمضان المبارک کے حوالے سے سوالات کیے، اور بہت مفید سوالات کیے، بہت علمی جوابات ہمیں ملے اور ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ اور ہمارا ایک سلسلہ حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے قبلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے عالم دین جو ہے وہ ہمارے ناظرین سے براہ راست جو ہے وہ ایک سوال کرتے ہیں، جس کا وہ کمنٹس میں جواب دیتے ہیں، اور جتنے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جواب آتے ہیں ہم ان کی قرآن اندازی میں نام ڈال کے ایک نام کو اٹھا کر اس کو ونر قرار دے کر اس کو ایک خوبصورت سا گفٹ اور کیش پرائز جو ہے وہ ہماری روایت رہی ہے۔ تو قبلہ، آپ ہمارے ناظرین سے کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، اور ہمارے ناظرین سے آپ ایک سوال کیا لائیو پوچھنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو حیدریہ ملٹی میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے خلوص کا، اور بہت بہترین سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے آپ ضرور آگاہی اور علم و عرفان کے روٹی بڑھتے ہوئے ہیں، اور معاشرے کے افراد تک آسان سازی اور آسانی کے لیے یہ بہترین ہمارے باتوں کا آپ کی طرف الہی آمین، الہی آمین۔ سوال ہم اپنے ناظرین سے آج بھی پوچھنا چاہیں گے۔ میں بہت آسان سوال پوچھتا ہوں اور انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ یعصوب الدین کس شخصیت کا لقب ہے، اور اس لقب کی توجیہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعصوب الدین کس ہستی کا لقب ہے؟ قبلہ کی طرف سے سوال جو ہے وہ ناظرین سے کس شخصیت کا لقب ہے؟ کس شخصیت کا لقب ہے؟ ناظرین محترم، آپ نے سوال جو ہے وہ سماعت کر لیا ہے، آپ کمنٹس میں جو ہے وہ جواب دینا شروع کریں۔ رمضان رحمتوں کا، برکتوں کا، عبادتوں کا، استغفار کا، قرآن کی تنزیل کا اور گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے میں اللہ والوں کا تذکرہ ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ ہمارے درمیان شہر کراچی کی معروف و مقبول آواز جناب سکندر زیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ سکندر زیدی صاحب، آپ کیا ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں، بارگاہ معصومین میں کیا نظر فرما رہے ہیں؟ اور حیدریہ ملٹی میڈیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مستقل رجب سے اور پورا شعبان اور اب ماشاءاللہ رمضان تک جو ہے وہ ذکر محمد و آل محمد کی اشاعت کر رہا ہے، پوری دنیا میں یہ ذکر کی ترویج کر رہا ہے، ذکر کو پھیلا رہا ہے۔ تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو آپ کیا جو ہے وہ سنا رہے ہیں؟
जज़ाकल्लाह अतर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, खुदा आपको सलामत रखे। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम, या अलैहिस्सलाम मदद। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ हैदरिया मल्टीमीडिया की पूरी टीम का कि खुदावंदा की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। इलाही कि आमीन। मुसलसल हम देख रहे हैं कि ये इस पेज पर ना सिर्फ कि मनक़बत ख़ानी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, बल्कि उस सिलसिले को कायम रखे हुए हैं कि जिससे हमारे दीन में तक़वियत पैदा हो, हमारे जो आने वाली नस्ल है वो उसकी जो है आगाही हो सके उलमा कराम के खिताबात से और उनके सवालात से और उनकी जो है वो दीन शनासी से। खुदा हमारे उलमा को सलामत रखे जो इस तरह का सिलसिला कर रहे हैं, और आप अतर भाई मुसलसल जो है वो इस सिलसिले को जारी रखे हुए, खुदा आपको सलामत रखे। मैं जो है वो मनक़बत क़िबला की इजाज़त से अपने नाज़रीन की नज़र करता हूँ, और दिल चाह रहा है कि क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक है, खुदा आप सबकी इबादत अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएँ। इलाही आमीन। एक नात से इब्तिदा करता हूँ। मेरे बरादर बुज़ुर्ग शायर लिबे जनाब शहजाद अब्बास ज़ैदी साहब का कलाम अपने नाज़रीन की नज़र करता हूँ। एक मरतबा दरूद का नज़राना पेश करते हैं पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। इजाज़त जी बिस्मिल्लाह। अदर भाई बिस्मिल्लाह साहब से हज़रत का तालिम हूँ। एक खूबसूरत नात उन्होंने कही, और मेरे ख़्याल से ये उस वक्त की नात है कि जब उनका इब्तिदाई दौर था शायरी में, मशर सुखन जारी था, तो जब उन्होंने ये नात कही थी और मुझे जब से ही पसंद है, मैं आप सामने की नज़र करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिस किसी को मोहम्मद का दर मिल गया, सुभान अल्लाह। जिस किसी को मोहम्मद का दर मिल गया, क्या बात है। उसको जन्नत का रख्ते सफ़र मिल गया। वाह 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 वाह। जिस किसी को मोहम्मद का दर मिल गया, सुभान उसको जन्नत का रख्ते सफ़र मिल गया। जिस किसी को मोहम्मद का दर मिल गया। एक ये तसलसल है माशाल्लाह, मैं जनाब रसूल खुदा की बारगाह में दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह कि आफ़ताबे नबूवत की फैली ज़िया, आ गए लो हबीबे खुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आफ़ताबे क्या बात है। नबूवत की फैली ज़िया, आ गए लोग हबीबे खुदा। गिर पड़े उनके कदमों में शाहो गदा। क्या बात है। हमको वाह, वाह, कितना हसी राहबर मिल गया। जिस किसी को मोहम्मद का दर मिल गया। सुभान अल्लाह। शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह। कि चार सू था अंधेरा उजाला न था, क्या बात है। नूर अहमद को पैकर में ढाला न था। वाह वाह वाह। चार सू था अंधेरा सुभान अल्लाह। उजाला न था, नूर वाह, वाह, वाह। अहमद को पैकर में ढाला न था। क्या बात। ऐसा बच्चा किसी माँ ने पाला न वाह, 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 था। वाह, वाह। ऐसा बच्चा किसी वाह, 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 माँ वाह, वाह। ने पाला न था। आमना को ये जैसा पिसर मिल गया, जिस किसी को मोहम्मद वाह, 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 वाह। कदर मिल गया। खूबसूरत शेर आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह। कि दीन की रोशनी जब बिखरने लगी, वाह। चांदनी सहन दिल में उतरने लगी। वाह, वाह। आदमियत की सूरत संवरने लगी। क्या बात है। पत्थरों को एक आईना घर मिल भाई सुभान अल्लाह। गया। वाह, 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 वाह। वाह, जिस वाह। किसी को मोहम्मद
قدر مل گیا. سر مختہ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص، اور ایک شعر اور آ گیا ہے. قبلہ آپ کی اجازت سے پیش کرتا ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خاص طور پہ محمد نام، کیا خوبصورت حسین نام پروردگار نے رکھا. اس نام کی کیا شاعر نے کس طرح قلم بند کیا پیش کرتا ہوں کہ میم مرہم بنی قلب مجروح کی، کیا بات ہے. میم مرہم بنی قلب مجروح کی، ہے سے حرف بات ہے. دعا کو ملی زندگی. کیا اچھا ہے. دوسری میم سے ہر مصیبت ٹلی، دال سے درد کا چارہ گر مل گیا. جس کسی کو محمد قدر مل گیا. اور یہ سب کی طرف سے میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص بسم اللہ. کہ سید انبیاء ہوں کہ خیبر شکن، حشر میں فاطمہ اور حسین و حسن، کیا کہنے ہیں. ہم کو جنت میں لے جائیں گے پنجتن. کیا بات ہے. ہر وسیلہ مجھے معتبر مل گیا. جس کسی کو محمد قدر مل گیا. مقطع بطور خاص پیش کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ. خداوندہ کی جو دنیا میں وائرس موجود ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں خدا اسے نیست و نابود کرے، اور میرے بڑے برادر بزرگ خدا انہیں سلامت رکھے. شاعر لبے جناب شجاعت عباس صاحب کے میں نے اشعار پیش کیے نعت کے. مقطع قبلہ پیش کر رہا ہوں، تربائی پیش کر رہا ہوں کہ جب شہ انبیاء کا اشارہ ہوا، باغ جنت شجاعت تمہارا ہوا. جب شہ انبیاء کا اشارہ ہوا، باغ جنت شجاعت ہمارا ہوا. اوج پر اب مقدر تمہارا ہوا. مجھ کو مدح نبی کا ثمر مل گیا. جس کسی کو محمد قدر مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، شہر کراچی ملک پاکستان کی نامور آواز، خوبصورت لب العین کے قاری جناب سکندر زیدی صاحب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے ہم معروف و مقبول ثنا گزار سپاس گزار جناب سکندر زیدی صاحب آپ کے تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں. جناب سکندر زیدی صاحب ابھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. آئیے ناظرین، ہم واجب الاحترام و دنیا خطابت کا ایک معتبر نامور عالم دین حضرت علامہ سید شبیر الحسن طاہری صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ، اس سے پہلے کہ آپ کی سے آغاز سوال ہو، ایک مرتبہ وہ سوال جو ابھی آپ نے ہمارے ناظرین سے کیا تھا، پوچھا تھا، ایک دفعہ پھر دہرا دیں کیونکہ ہمارے ناظرین کچھ ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. تو جو آپ نے لائیو ایک سوال جو مومنین سے پوچھا تھا، ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر دیں، پھر ہم انشاءاللہ سوالات کی طرف آتے ہیں کہ ماہ سیام یعنی رمضان المبارک کی فضیلت جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ بیان فرمائیں. بہت شکریہ. اچھا، سوال ہم نے یہ پوچھا ہے کہ یعصوب الدین کس کا لقب ہے اور اس کی توجیہ لقب کیوں ہے یہ؟ ٹھیک. اچھا، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت جو ہے وہ آپ بیان فرمائیں. ماہ مبارک رمضان شہر اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا مہینہ. کیا بات ہے. اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے دہن عصمت سے بہت زیادہ ارشادات ہم تک پہنچے ہیں. واہ. اور خاص طور پر پیغمبر اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان سے کچھ دن پہلے، یعنی 2-3 دن پہلے، ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان کیا. سبحان اللہ. اور وہ خطبہ ہماری بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور حتیٰ کہ مفاتیح الجنان میں بھی وہ خطبہ موجود ہے، کہ جس میں
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान की फजीलत बताई। तो खुतबा तो पुरानी है जी ना, उसमें से कुछ आपकी खिदमत में सर अर्ज़ किबला करूं। क्या अच्छा हो कि वो जो खुतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस खुतबे का नाम जो है वो खुतबा शाबानिया जिसे सुभान कहते हैं। अल्लाह, वाह, वाह। और पैगम्बर अकरम ने उस खुतबे में से मैं रसूल अकरम का ये इरशाद दे रहा हूँ बिस्मिल्लाह। कि इस तरह मुखातिब हुए जब वो खुतबा दे रहे थे, वाह या अय्युहन नास क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह वाह व क़द दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह। वाह वाह अय्युहन नास, पैगम्बर फरमा रहे हैं, ऐ लोगो, क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, वाह अन करीब तुम्हारे पास अल्लाह का महीना आ रहा है। सुभान अल्लाह, शहरुल्लाह, रमज़ान आ रहा है। वाह रमज़ान क्या है? ये शहरुल्लाह, ये अल्लाह का महीना है। फिर फरमाया वक़द दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह, वाह ये वो महीना है कि जिसमें तुम्हें अल्लाह की मेहमानी की दावत दी गई। सुभान अल्लाह, वाह यानी वाह परवरदिगार आलम ने मखलूक को, खुसूसन इंसानों को दावत दी है कि वो अल्लाह के मेहमान बने वाह और अल्लाह इस महीने में उनकी मेज़बानी करे। सुभान अल्लाह, अब देखिए कि अगर कोई हमें दावत देता है वाह और तो हमें खुशी होती है। अब बेशक। दावत देने वाला हमारा मेज़बान जो है, हमें अच्छा लगता है कि कोई भी दावत दे, किसी भी इंसान को अच्छा लगेगा कि दावत दी है। वाह, फिर मेज़बान को देखा जाएगा कि दावत देने वाला मेज़बान कौन है। क्या बात है, उसकी हैसियत जितनी आला होगी, जितनी बाला होगी, उस हिसाब से हम उस तैयारी के साथ उसके यहाँ जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, अगर किसी अच्छे बड़े ग्रेड के ऑफिसर ने बुला लिया, फिर अगर मुशीर ने, वज़ीर ने बुला लिया, फिर अगर वज़ीर आला ने बुला लिया, तो जिस तरह फ़र्क है मरातिब में, क्या बात उसी है। तरह हमारी तैयारी तैयारी में होगी, भी बिल्कुल। फ़र्क आ बिल्कुल जाएगा। ऐसा। और अगर वज़ीर आज़म बुला लें, अगर सदर बुला लें, तो हमारी तैयारी कुछ और और होगी, ज़्यादा करेगी। हमारा जाने का अंदाज़ कुछ और होगा। क्या अच्छी बात की, वाह अब वाह, हर इंसान सोचे कि अगर आपको मेहमान बनाए और आपको दावत दे, वो खालिक के जो सारे बादशाहों का बादशाह है, सुभान अल्लाह, वाह जो वाह सारी वाह, कायनात का खालिक व मालिक है, क्या बात है, पैदा करने वाला है, ज़मीन का, ज़मन का, आसमान का, चमन का, घर का, बाहर का, खुश का, सुभान दर का, अल्लाह, वाह वाह वाह, हजर का, शजर का, दरिया का, समंदर का, खिज़्र का, सिकंदर का, वाह अर्ज़ वाह का, वाह समा का, वाह वाह हवा वाह, का, फ़ज़ा का, दश्त का, सहरा का, बहते हुए दरिया का, सुभान दिन अल्लाह, के सुभान उजाले का, अल्लाह, रात की तारीख पर्दे का, शाम व सहर का, सुभान लैल व वाह नहार वाह का, वाह वाह, शब व रोज़ का, बदलते हुए मौसम का, महल्लात का, बागात का, आसाइशात का, जमानात का, सुभान अल्लाह, मौलानात, सुभान हैवानात अल्लाह, का, वाह वाह वाह, जो सारी कायनात का क्या तन्हा बात है। एक अकेला अल्लाह खालिक है आहा, और फिर वही मालिक है। वाह, सबको वाह। ज़िंदगी देने वाला वो है, सांसें देने वाला वो है, हयात देने वाला वो है, रिज़्क देने वाला वो, लिबास देने वाला वो, खुराक देने वाला वो, सुभान रिहाइश व अल्लाह। पोशाक देने वाला वो, अजदाद वालिदैन देने वाला वो, औलाद देने वाला वो, अहबाब देने वाला वो। उसी ने हमारे लिए रोशन दिन को पैदा किया, हमारे लिए हवाएं चलाई, सुभान हमारे लिए अल्लाह, ज़मीन वाह, का वाह, फर्श वाह, बिछाया, वाह। हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, क्या बात है। हमारे लिए चाँद को चाँदनी दी, सूरज को रोशनी दी, फलक सितारों से सजाया। वाह। इस कदर उसकी नेमतें हैं, उसकी नेमतों को कोई गिन सकता है, उसकी सुभान नेमतों अल्लाह, को कोई सुभान शुमार अल्लाह, कर सकता वाह, है। वाह, एक इंसान के पास अल्लाह की इतनी नेमतें हैं कि अगर सारी कायनात के इंसान मिलकर, जमा होकर, इकट्ठे होकर उन नेमतों को शुमार करें जो किसी भी एक बंदे के पास हैं, तो नहीं कर सकते, वाह वाह, नहीं कर सकते हैं। इतनी यानी इंसान अपने वजूद के अंदर एक कायनात रखता क्या है। है? और मासूम फरमाते हैं ये जो बाहर की कायनात है ये आलम असगर है आहा। और इंसान तेरे अंदर आलम अकबर है। सुभान अल्लाह, तो वाह, जब वाह, हम इस वाह। छोटी कायनात का ही इदरा को एहसास वाह, नहीं वाह, कर वाह, पाते वाह, वाह, वाह। और छोटी कायनात में जो कुछ खालिक ने फैला रखा है जब हम उसे ही नहीं गिन पाते, क्या बात तो है। बड़ी कायनात में जो कुछ उसने समेट दिया उसे कैसे गिन सकें। सुभान तो अल्लाह, परवरदिगार है वो कादिर मुतलक है और वो अपनी कुदरत को इसी तरह मनवाता है क्या बात कि है, अगर वो फैलाए तो छोटी कायनात को इतना ज़्यादा फैला देता है क्या बात है। कि 7 बड़े आज़मों में फैल जाती है। और अगर वो समेटने पे आए तो बड़ी कायनात को एक 6 फुट के इंसान के अंदर समेट के रखता सुभान है। वाह वाह वाह, यही तो उसकी कुदरत है, सुभान यही तो अल्लाह, उसकी सुभान साबितियत क्या है बात है। और यही उसकी हिकमत है, ये उसका फ़न है और यही उसका हुनर है, क्योंकि वो खालिक है और वो मालिक है और वो परवरदिगार है क्या और वो बात हर चीज़ पर कुदरत रखता सुभान है। उसने इंसान को पैदा किया है वाह, और अजीब है वो परवरदिगार कि जो पानी पर नक्श बनाता है।
क्या पानी पर बात कोई है। नक्श नहीं बना सकता। भाई वाह 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 इंसान वाह का वाह नक्श वाह। उसने पानी पे बनाया है वाह, और वाह, फिर वाह। वहीं उसने तस्वीर बनाई है, उसके खदोखाल वहीं पर खींचे क्या हैं और बात। जहाँ रोशनी और हवा का गुजर नहीं है वहाँ इंसान को खल्क किया है वाह, और वाह। पूरा वजूद अता किया वाह। और उसके तमाम आज़ा और जवानी को वहीं पे उसे बनाया। तो इंसान जितना उसका शुक्र करे, अच्छा मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा माबूद, परवरदिगार जो अहद है, समद है, लम यलिद वलम युलद है, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद है, जो बेमिसल है, बेनज़ीर है, ला शरीक, ला ज़मान, ला मकान, ला महदूद, अज़ली, अबदी, सरमदी, कदीम, कादिर, खालिक, मालिक, रहमान, रहीम, करीम, वाह, 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 वाह। वो माबूद अगर दावत दे और बुलाए तो किस कदर खुशकिस्मती है, सुभान जिस अल्लाह, कदर वाह। सआदतमंदी और नेकबख्ती है। हाँ। और जिस तरह ये बहुत बड़ी सआदतमंदी और नेकबख्ती है कि अल्लाह मेहमान बना रहा है, क्या बात है। खुशकिस्मती है कि खुदा आलम मेज़बान बन रहा है, हमारा खालिक होकर, मालिक होकर, हमारा माबूद होकर उसने दावत दे दी। हाँ। अब मुझे बताइए कि वो कितना बदनसीब होगा कि बादशाहों का बादशाह दावत दे और वो उसके दस्तरखान पे हाजिर ना हो क्या सके। बात। माह मुबारक रमज़ान में अच्छा मादी दस्तरखान मुराद नहीं है, वो तो पूरा साल रिज़्क़ हमें अल्लाह ही देता बेशक, है। हम जो कुछ बेशक। खा रहे हैं पूरा पी सब रहे हैं, उसकी खा देन। रहे हैं, पी रहे हैं, पूरा साल हम जो कुछ पहनते हैं, ओढ़ते हैं, वो सब अल्लाह ही दे रहा है। बेशक। इस महीने में जो उसने बुलाया है तो दस्तरखान रूहानियत का, क्या बात। दस्तरखान इबादत का है। वाह, वाह, वाह। ये दस्तरखान दूसरा दस्तरखान, हाँ। इसमें हम तुम्हें अपना मेहमान बुला रहे हैं, आ जाओ, हमने खान सजा दिया, वाह, तुम्हारी वाह, रूह वाह, के लिए सजाया, रोजे रखो। इस दस्तरखान पर क्या है? दुआएं हैं, कुरान की तिलावत क्या है, बात। जिक्र खुदा है, याद खुदा है, मनाजात इलाही है। ये तुम्हारी रूह की ज़रूरत है, क्या वो बात हमने है। खान वाह, सजा वाह, दिया वाह, है। सुभान अल्लाह। आओ और आकर अपनी इन ज़रूरतों को यहाँ से पूरा सुभान करो। अल्लाह, अच्छा सुभान पूरा अल्लाह, महीने, क्या बात। पूरे 11 महीने हमसे गाफिल रहे हो, हाँ, हाँ। हमें भूले रहे हो, वाह। रिज़्क़ हम दे रहे थे, नेमतें हम दे रहे थे, फिर भी तुम्हें हम याद नहीं थे, अब हम खुद बुला रहे हैं। क्या आ बात। जाओ हमारी तरफ आ जाओ। सुभान हम अल्लाह, नहीं सुभान चाहते कि तुम्हारे और हमारे दरमियान जो रिश्ते हैं उनमें कोई कमजोरी आ क्या जाए, उनमें बात। कोई फासला आ जाए। वाह। हम फासला नहीं चाहते, हम तुम्हें अपना कुर्ब देना चाहते हैं, हम तुम्हें अपनी कुर्बत देना चाहते हैं। और उसके लिए जिस तरह परवरदिगार आलम ने हमें सांस दी है तो ये सांस उसकी नेमत है, वाह। बसारत दी उसकी नेमत है, समात दी है तो उसकी नेमत है, उसने अदा व जवारे दिए, चलने वाले पाँव दिए, हरकत करने वाले हाथ दिए, बोलने वाली ज़ुबान दी, देखने वाली आँख दिए, धड़कने वाला दिल, सोचने वाला दिमाग, ये सब उसकी नेमतें हैं, बेशक, बेशक। उसकी मेहरबानियाँ हैं। हाँ। उसी तरह उसने हमें रमज़ान दिया, ये रमज़ान भी उसकी मेहरबानी क्या है, बात। ये उसका करम हाँ, है, ये उसका लुत्फ़ है, ये उसका एहसान है। हाँ। फिर उसने हमारा जो हमेशा का दुश्मन है, इन्न शैतान लिल इंसान, या तो वो मुबीन, उसे जंजीरों में जकड़ दिया, वाह, देखो ये वाह, तुम्हें हमारे पास आने नहीं देता है, क्या हम बात। इसे जंजीरों में कैद कर रहे हैं, क्या अब बात। कोई रुकावट नहीं, सुभान अल्लाह। आ जाओ। अब भी अगर माह मुबारक रमज़ान में कोई अल्लाह की तरफ ना आए तो वो बदबख्त है। इसलिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में रमज़ान आता है और वो माह मुबारक रमज़ान में तौबा के ज़रिए से और इबादत के ज़रिए से खुदा का कुर्ब हासिल नहीं कर पाता और इस माह रमज़ान में वो अपने गुनाहों को बख्शिश करवाने में, गुनाहों की बख्शिश करवाने में कामयाब नहीं होता है तो ये बदनसीब है, ये बदबख्त है। और फिर रमज़ान के बाद, जब रमज़ान में नहीं माफ़ करवा सका तो रमज़ान के बाद तो इसके गुनाह नहीं बख्शे जा सकते। क्या बात। हाँ, ये एक सूरत हो सकती है, इमाम फरमाते हैं कि या तो इसे अगले साल रमज़ान तक ज़िंदगी नसीब हो और उसका क्या भरोसा, ज़िंदगी का एक पल की खबर नहीं है, या तो ये कि अगले साल रमज़ान आए और उस साल रमज़ान तक हम जिंदा रहें और फिर दोबारा हम इबादत करें। यानी रमज़ान अगर खो दिया है तो फिर दोबारा अगर रमज़ान ही हमारी ज़िंदगी में आएगा तो हमें बख्शिश मिल सकती है, या ये कि बीच में हमें हज पे जाना हो और मैदान अरफा में हमारी हाजिरी हो जाए और हज का रुकन आज़म जो है मैदान अरफात, हम वहाँ मौजूद होंगे तो हमारी बख्शिश हो जाए। वरना इन दो मौक़ों के अलावा जिसने रमज़ान ज़ाया किया उसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती, उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सआदतमंद वो है कि जो इस रमज़ान में अपने खालिक को पाए। और जिस तरह जनाब अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि जिसने अल्लाह है अल्लाह, जिसने तुझे पाया उसने क्या पाया और जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया, जिसने अल्लाह को पा लिया उसने पाया ही पाया और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने खोया ही खोया। क्या बात। तो अल्लाह को पाने का महीना है रमज़ान, जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। इसलिए कि कायनात में जो कुछ है वो सब अल्लाह ही का है। जब हम अल्लाह के हो गए और अल्लाह हमारा हो गया तो फिर सब सारी कायनात हमारी है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सामिन मोहतरम, आप समाअत फरमा रहे हैं दुनियाए खिताबत का एक मोतबर नाम पर आलिम दीन हज़रत अल्लामा शब्बीरुल हसन ताजरी साहब जो मारकातुल आला अल्फाज और रूह अफरोज़ बयान से आप मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे हैं। क़िबला फ़लसफ़ाए रोज़ा क्या है, हमारे नाज़रीन की खिदमत में जो बयान फरमाएँ, रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है, उसकी तफसील बयान फरमाएँ। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि रोज़े का फ़लसफ़ा, रोज़े की इल्लत कि रोज़े को हम पर क्यों वाजिब करार दिया बेशक। है।
परवरदिगार अमूमी तौर पर सबसे पहले मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि इतना जान लेना चाहिए, हर शख्स के दिल में ये बात होनी चाहिए कि परवरदिगार आलम ने, रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन में, अपने इस्लाम में, अपने कानून शरीयत में जिन भी चीज़ों को हम पर वाजिब करार दिया है उनका फ़ायदा इंसान को, जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनके इर्तिकाब में नुकसान भी इंसान को। अगर हम हराम का इर्तिकाब करें, जिस काम से अल्लाह ने मना किया जी, हराम काम करेंगे तो उसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, नुकसान बंदे का अपना है। है अगर वाजिब काम को छोड़ देंगे तो हमने अपने आप को अजीम फ़ायदे से महरूम किया, अल्लाह को किसी फ़ायदे से महरूम नहीं किया, खुद को महरूम किया। महरूम किया। तो अल्लाह ने जिन चीज़ों को वाजिब करार दिया है उसमें हमारा फ़ायदा, जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उसमें हमारा नुकसान। नमाज हम पर वाजिब करार दिया तो नमाज का भी अपना एक फ़लसफ़ा, इसी तरह रोज़े को वाजिब करार दिया तो रोज़े का भी अपना एक फ़लसफ़ा है, हज को वाजिब करार दिया तो हज का भी, ज़कात का, खुम्स का, जहाद का, अम्र का, नहीं का, हर चीज़ का। रोज़े का फ़लसफ़ा सबसे पहले हम कुरान मजीद से जाकर पूछें कि रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है। रोज़े का फ़लसफ़ा कुरान मजीद ने भी बयान किया और रोज़े का जो फ़लसफ़ा है वो पैगम्बर अकरम ने भी बयान किया और फिर रोज़े का जो फ़लसफ़ा है वो अतिब्बा ने, मेडिकल साइंस जानने वाले साइंसदान जो हैं, क्या बात है, उन्होंने भी बयान किया। तो रोज़े के 3 फ़लसफ़े, रोज़े का एक फ़लसफ़ा है कुरानी फ़लसफ़ा, दूसरा फ़लसफ़ा है रोज़े का तिब्बी फ़लसफ़ा, क्या बात है, और तीसरा फ़लसफ़ा रोज़े का जो है वो समाजी फ़लसफ़ा। 3 फ़लसफ़े हैं रोज़े के। कुरानी फ़लसफ़ा तो ये है कि कुरान मजीद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या साहिबान ईमान, हमने आप पर रोज़े फ़र्ज़ किए उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले वालों पर रोज़े फ़र्ज़ किए। क्यों फ़र्ज़ किए परवरदिगारा रोज़े? क्या बात है, हमारे ऊपर जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं तो क्यों, किस लिए फ़र्ज़ किए? लअल्लकुम तत्तक़ून, क्या बात ताकि इन रोज़ों के ज़रिए से तुम मुत्तक़ी हो जाओ। वाह वाह वाह। तो कुरान मजीद ने रोज़े का फ़लसफ़ा बयान कर दिया कि रोज़े का फ़लसफ़ा ये है ताकि इंसान मुत्तक़ी हो, इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो। तक़वा से मुराद ये है कि इंसान के बातिन के अंदर वो तहारत और वो पाकीज़गी आ जाए, इंसान के नफ्स में, इंसान के क़ल्ब के अंदर वो तहारत और वो पाकीज़गी आ जाए कि जिसके बाद उसका अंदर नेक आमाल को बजा लाने के लिए तैयार और आमादा हो और हराम कामों से परहेज़ करे, यानी उसके अंदर एक मलका पैदा हो जाए कि उस मलके के ज़रिए, उस रूहानियत के ज़रिए, उस बातनी तहारत के ज़रिए से वो नेक आमाल ही अंजाम दे और बुरे कामों से परहेज़ करे। तो ये रोज़ा हमारे नफ्स के अंदर वो तहारत पैदा कर देता है। क्या बात है, ये रोज़ा हमारे दिल के अंदर वो तक़वा और वो पाकीज़गी डाल देता है कि जिसके बाद हमारा दिल बुराइयों को छोड़ देता है, क्या और बात हमारा है, दिल बुराइयों की तरफ माइल होता है, हमारा दिल अच्छाई को पसंद करने लगता है, यानी हमारी लज्जत ही अच्छाई में होती है, इबादत ही में हमें लज्जत महसूस होती है, हमें अच्छा ही ये लगता है कि हम नेक काम करें, हम ऐसे हो जाते हैं, हमारी क़ल्बी कैफियत ऐसी हो जाती है। ये मुसलसल अगर कोई शख्स रोज़ा रखे और इस तरह रोज़ा रखे कि जैसे रोज़ा रखना चाहिए, जिस तरह रोज़ा रखने का तकाज़ा हमसे हमारा खालिक करता है, हमारा मालिक और हमारा माबूद जिस तरह रोज़ा रखने का हमसे तकाज़ा करता है, जिस तरह कुरान और पैगम्बर इस्लाम, दीन और शरीयत हमसे रोज़े का तकाज़ा करती है, अगर हम रोज़े को उसी तरह रखें तो रोज़े के सारे फ़ायदे हासिल होते हैं, तिब्बी फ़ायदे भी हासिल होते हैं, समाजी फ़ायदे भी हासिल होते हैं और ये कुरानी और रूहानी फ़ायदे भी हमें हासिल हो जाते हैं रोज़े के। तो वो कौन सा रोज़ा है, किस तरह वो रोज़ा रखा जाएगा? तो मासूमीन और इस्लाम के इरशादात की रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूँ कि रोज़ा सिर्फ मुँह बांधने का नाम नहीं, क्या अच्छी बात है, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से अपने आप को रोकने का नाम नहीं। एक तो वो 9 चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़ा बातिल हो जाता है, कि जो तकरीबन सबको मालूम है कि जिसमें खाना पीना है कि अगर हम कोई भी चीज़ खाएंगे या पिएंगे रोज़े की हालत में आज़ान सुबह से लेकर आज़ान मगरिब तक परहेज़ करना है, किससे? खाने से और पीने से। एक तो खाना पीना, इस्तिमना से परहेज़ करना, जमा से परहेज़ करना, गर्द और गुबार हालत तक न पहुँचाए, वो अगर जाएगा तो उससे रोज़ा बातिल हो जाएगा। पूरे सर को पानी में नहीं डुबोना है, उससे रोज़ा बातिल हो जाएगा। अगर 4 मासूम पैगम्बर अकरम यानी खुदा और रसूल अकरम और अहले बैत के 4 मासूमीन में से किसी की तरफ कोई गलत बात मंसूब की जाए, बाज़ औक़ात लोग यूँ बात करते हैं कि अगर झूठी हदीस बयान करेंगे तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यूँ कभी भी ना कहा करो कि झूठी हदीस कभी झूठी नहीं होती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर झूठी बात या गलत बात को मासूम से मंसूब कर दिया, वाह वाह, तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। वाह वाह, हदीस तो कभी झूठ होती ही नहीं है, क्या हदीस अच्छी तो बात है, हमेशा वाह, वाह, जब वाह, हदीस बहुत है तो अच्छा फिर वो लगता हक है, वाह, अगर वाह। हदीस है, अगर कौल मासूम है तो वो हक है।
गलत बात अगर कोई मासूम से मंसूब करेगा तो उसका रोज़ा, ये तो एक सतही रोज़ा है, क्या बात, ये रोज़ा बस इस हद तक के 9 चीज़ों से हमने परहेज़ करना है, तो बस इसी हद तक अगर कोई रहे तो उसने सिर्फ इतना काम किया है कि खुदा के हुक्म की तामील हो गई, और रोज़ा न रखने की सूरत में जो गुनाह होता है उस गुनाह से बच गया। लेकिन अगर रोज़े को उसके फ़लसफ़े के साथ रखना और उसकी हकीकत के साथ कि जिससे रोज़े के पूरे फ़ायदे हासिल हों, तो फिर इमाम फरमाते हैं कि रोज़े की हालत में तुम्हारी आँख भी रोज़े से होनी चाहिए, तुम्हारे कान भी रोज़े से होने चाहिए, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारे हाथ भी रोज़े से होने चाहिए, यानी तुम्हारी आँख खयानत न करे, तुम्हारे कान वो आवाज़ें न सुने कि जिनका सुनना हराम, तुम्हारी ज़बान पर झूठ ना आए, चुगलखोरी ना आए, गीबत ना आए, इस ज़बान से किसी का दिल न दुखाओ, क्या बात है, इन हाथों से किसी पर जुल्म न करो, किसी पर तजावुज़ न करो, किसी का हक गसब न करो। अलगर्ज ये कि तमाम आज़ा व जवारे से अल्लाह की इताअत करो, हराम कामों से परहेज़ करो, वाजिबात को अदा करो। और जब कोई इस माह मुबारक रमज़ान में हराम कामों से परहेज़ करता है, रोज़ा रखता है और हराम कामों से परहेज़ करता है, खुदा की नाफरमानी नहीं करता, रोज़े के साथ नमाज की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावत करता है, तो ऐसा रोज़ादार अगर सो भी जाए तो उसकी नींद भी इबादत है। सुभान अल्लाह, ऐसा रोज़ादार अगर सांस भी ले तो उसकी सांस तस्बीह का दर्जा रखती है। क्या बात, उसके सांस लेने पर खुदावंद आलम उसको, बाद लोग समझते हैं कि रमज़ान में शायद हर बंदे का ही सांस लेना तस्बीह का दर्जा, ऐसा नहीं है। तो कोई शख्स रोज़ा ही नहीं रख रहा, या किसी को खुदा ही याद नहीं है, या कोई वाजिबात ही अदा नहीं कर रहा, तो उसकी सांसों के साथ तो तस्बीह का सवाब उसे नहीं मिलेगा, उसके लिए तो कुछ और ही होगा। अब ज़ाहिर सी बात है, वो अल्फाज मैं नहीं कह सकता हूँ। अब सांस के साथ तस्बीह का सवाब उसी को मिलेगा जो इस महीने में खुदा की इताअत करेगा और हराम कामों को छोड़ दे और वाजिबात को अदा करेगा। तो रोज़ा ऐसा होना चाहिए, जब रोज़ा ऐसा होगा कि हराम कामों से परहेज़ किया जाएगा और वाजिबात को अदा किया जाएगा और खुदा की कामिलन इताअत की जाएगी, तो रोज़े के तमाम वो असरात मुरतब होंगे। यानी ये रोज़ा दिल को पाक कर देगा, ये रोज़ा नफ्स को पाक कर देगा, ये रोज़ा कल्ब को कल्ब सलीम बना देगा। ये वो रोज़ा है कि जिस रोज़े के बाद दिल में याद खुदा उतर जाएगी, मारिफत खुदा दाखिल होगी। ये वो रोज़ा है कि जिस रोज़े के बाद दिल के अंदर अहले बैत का इश्क व अक़ीदत और मवद्दत और मारिफत उस तरह उतरेगी कि जैसे उतरनी चाहिए, क्योंकि इस दिल के अंदर खुदा की याद और अहले बैत के इश्क व अक़ीदत के दाखिल होने में जो रुकावट है वो गुनाहों की गंदगी है, वो गुनाहों की आलाइशें हैं, वो गुनाहों की कसाफतें हैं। जब रोज़े को हम इस तरीके से रखें कि गुनाहों की आलाइशों को बरतरफ कर दें, गुनाहों की कसाफत, गुनाहों की गलादत, गुनाहों की गंदगी को अपने नफ्स से, अपने बातिन से, अपने दिल से दूर करने में कामयाब हो जाएं, दिल जब पाक हो जाएगा तो दिल में खुदा की याद आ जाएगी, अहले बैत का इश्क आ जाएगा, और जब इस दिल के ऊपर अहले बैत की हुकूमत होगी तो फिर इस दिल पे शैतान की हुकूमत कायम नहीं हो सकती। इसीलिए तो पैगंबर ने कहा कि हुब्बु अलीयन यअकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब, कि अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। लोग इसका मफहूम नहीं समझे हैं। जाहिर सी बात है कि गुनाह निजासत है। गुनाह क्या है? निजासत। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तहारत है, और मंतिक का कानून है कि दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे की जिद हों वो एक ही जगह जमा नहीं हो सकती। निजासत और तहारत एक जगह जमा नहीं हो सकती, दिन और रात एक ही जगह जमा नहीं हो सकती। अभी इस वक्त या तो रात है या दिन है। अगर रात है तो इसका क्या मतलब है कि दिन नहीं है। रात का वजूद दिन की नफी करता है। क्या बात है। दो ऐसी चीजें कि जो एक दूसरे की जिद होती हैं वो एक जगह जमा नहीं हो सकती। हमारे सामने एक गिलास है, एक ज़र्फ है, ये ज़र्फ या तो पाक होगा या फिर निजस होगा। अगर ये ज़र्फ पाक है तो निजस नहीं है, क्या कहने, और अगर निजस है तो पाक नहीं है। इसी तरह दिल भी एक ज़र्फ है, ये या तो निजस होगा या पाक होगा, और अगर इसमें अली की मोहब्बत उतर जाएगी तो गुनाहों की निजासत निकल जाएगी, फिर ये दिल पाक ही रहेगा। यही फलसफा है हुब्बु अली का, जो पैगंबर ने कहा है कि अली की मोहब्बत गुनाहों को, इसका मतलब ये नहीं कि पैगंबर ने कहा अली अली करते रहो, गुनाह करते रहो। पैगंबर ये कहना चाह रहे हैं कि अली की मोहब्बत को दिल में इस तरह उतारो कि फिर हर कदम पर अली की इताअत करो। और जब तुम अली की मोहब्बत जब तुमसे अली की इताअत करवाएगी तो तुम शैतान की इताअत से बाहर हो जाओगे, तुम खुदा की इताअत में आ जाओगे। इस तरह दिल में तहारत होगी, दिल में तकवा होगा, दिल में पाकीज़गी होगी। यानी रोज़े का फलसफा और अहले बैत की मोहब्बत एक ही काम करते हैं। रोज़े से भी दिल में तहारत आती है और अहले बैत की मोहब्बत भी दिल में तहारत और पाकीज़गी को दाखिल करती है। ये अहम तरीन फ़लसफ़ा है रोज़े का। रोज़े का ये वो फ़लसफ़ा है जो कुरान मजीद ने बयान किया है। ये है रोज़े का कुरानी फ़लसफ़ा, ये है रोज़े का रूहानी फ़लसफ़ा, ये है रोज़े का बातनी फ़लसफ़ा। अब दूसरा फ़लसफ़ा जो तिब्बी फ़लसफ़ा है रोज़े का, जिसे पैगंबर गिरामी ने भी बयान किया। पैगंबर फरमाते हैं सोमो तसेहो, रोज़ा रखो ताकि तुम सेहतमंद रहो। तो ये है रोज़े का तिब्बी फ़लसफ़ा। और इसे डॉक्टरों ने भी
इसको तस्लीम किया है, मेडिकल साइंस जानने वाले लोगों ने, साइंसदानों ने तस्लीम किया कि वाक़ई इस रोज़े के ज़रिए से जब साल में हम मैदे, हमारा जो मैदा है ना, ये मशीनरी ठीक रहेगी तो पूरा वजूद ठीक रहेगा। ये हज़म करने वाली मशीन जो है ना, ये अगर ख़राब हो जाएगी तो सारी बीमारियाँ मैदे से निकलती हैं। क्या बात है। जब हर चीज़ को रेस्ट की ज़रूरत है, देखिए जब हम सोते हैं तो हम नींद लेते हैं तो हमारे दिमाग को, हमारी आंखों को, हमारे पूरे बॉडी को रेस्ट मिल रहा होता क्या है। इस बात तरह हर चीज़ को रेस्ट की ज़रूरत है, मैदे को भी रेस्ट की ज़रूरत है। अगर पूरा साल मैदे के ऊपर बोझ डालते रहेंगे तो मैदे के अंदर से ही बीमारियाँ निकलती हैं। बहुत सारे ज़्यादा खाने की वजह से मवाद हैं, फासिद मवाद, जो फालतू जमा हो जाते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर होते हैं और नुकसान भी होते हैं। रमज़ान रंग से जलने के मायने से निकला, जब हम रोज़ा रखते हैं तो वो फासिद मादे जल जाते हैं, सुभान अल्लाह, वो फासिद वाह, वाह, मादे वाह, वाह। जल जाते हैं क्या और बात है। मैदे को रेस्ट मिल जाता है और मैदा तरोताज़ा हो जाता है और एक नई ताजगी मैदे के अंदर, एक तवानाई आ जाती है, ताकत आ जाती है और मज़ीद 11 महीने काम करने के लिए ये मशीन जो है ये एक नई क़ुव्वत ले लेती है, इस रोज़े से एक नई ताकत ले लेती है, तो दुरुस्त हो जाती है, यानी इसकी रिपेयरिंग हो जाती है मैदे की जो क्या है। बात है। तो मैदे को रेस्ट देने के लिए और मैदे को ठीक रखने के लिए और ज़्यादा खाने की वजह से जो फासिद मादे, फालतू चर्बियाँ जो बन चुकी होती हैं उनको जलाने के लिए और ख़त्म करने के लिए ये रोज़ा ज़रूरी है। और मज़ीद डॉक्टर और मेडिकल साइंस जानने वाले इससे ज़्यादा, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा बयान करेंगे रोज़े का तिब्बी फ़लसफ़ा क्या हुआ, वो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर बयान करेंगे कि रोज़ा रखने वाले सेहतमंद रहेंगे। रोज़ा रखने वालों का जो फालतू वज़न है वो कम हो जाता है, तो स्मार्ट हो जाता है बंदा। रोज़ा रखने से स्मार्ट भी होता है, वज़न भी कम होता है, मैदा भी ठीक हो जाता है, चेहरे पे भी रौनक आ जाती है। तो ये रोज़े का तिब्बी फ़लसफ़ा है। और समाजी फ़लसफ़ा जो रोज़े का है वो ये है कि इस रोज़े के ज़रिए से, क्योंकि जब हम खा पी रहे होते हैं तो हम तो पी रहे हैं, हम तो खा रहे हैं, कोई भूखा है उसका एहसास कैसे कर रहा है, कोई प्यासा है उसका एहसास कैसे होगा। जब हम रोज़े की हालत में प्यास बर्दाश्त करते हैं गर्मियों में तो प्यासों के लिए एहसास पैदा होता है, और जब हम भूख बर्दाश्त करते हैं, और अल्लाह यही चाहता है कि तुम्हें पूरा साल रिस्क मिलता है, मगर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो भूख काट रहे हैं, जिनके यहाँ फ़क्र है, गरीबी है, तंगदस्ती है, साल के 12 महीने तंगदस्ती और गुर्बत रहती है उनके यहाँ, अपनी इस भूख और प्यास के ज़रिए से उनके लिए अपने दिल में एहसास पैदा होता है, उनके लिए अपने दिल में। तो ये रोज़ा गरीबों का एहसास पैदा करता है, जो साल भर भूखे रहते हैं और प्यासे रहते हैं और अच्छा नहीं खा सकते, अच्छा नहीं पहन सकते। भूखे प्यासे रहने से मुराद ये है कि अच्छा नहीं पी सकते, अच्छा नहीं खा सकते, तो ये रोज़ा हमारे अंदर उनका एहसास पैदा करता है। ये समाजी फ़लसफ़ा है रोज़े का। और एक उखरवी फ़लसफ़ा है, वो ये है कि इस रोज़े की भूख और प्यास के ज़रिए से क़यामत की भूख और प्यास को याद करें। सुभान अल्लाह। वो दिन है और एक सख्त दिन है, और उस दिन की भूख और प्यास कैसी होगी। आज जो रोज़े के अंदर भूख और प्यास को बर्दाश्त कर लेगा, इंशाअल्लाह उसे क़यामत के दिन भूख और प्यासा नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हदरिया मल्टी मीडिया की जानिब से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लामा शबीर हसन ताहिरी साहब बहुत ही इल्मी गुफ्तगू इस वक्त फरमा रहे हैं, और कुरान की रोशनी में भी फ़लसफ़ा रोज़ा बयान किया, तिब की रोशनी में भी, समाजी रोशनी में भी तिब का फ़लसफ़ा रोज़ा बयान भी। और क़िबला ने फरमाया कि अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे जला देती है जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है। बस मैं यहीं से अपना क़िबला के टॉपिक से टॉपिक मिलाते हुए क़िबला के ज़िक्र की खुशबू को मुसलसल किए देता हूँ कि रब से अहमद की मुलाकात अली से पूछो। क़िबला की इजाज़त से नाज़रीन की समाज को हदिया कर रहा हूँ कि रब से अहमद की मुलाकात अली से पूछो, और इस मुलाकात की हर बात अली से पूछो, इस मुलाकात की हर बात अली से पूछो। अरे जिस्म रखता नहीं अल्लाह ये सब जानते हैं, जिस्म रखता नहीं अल्लाह ये सब जानते हैं, किसका पर्दे में था फिर हाथ अली से पूछो, किसका पर्दे में था फिर हाथ अली से पूछो। ओ हो अली वाले तो दौलत का दिखावा न करो, अरे कैसे की जाती है खैरात अली से पूछो। और पुतला आदम का बना ये है बहुत बात की बात, पुतला आदम का बना ये है बहुत बात की बात, इससे पहले के भी हालात अली से पूछो, इससे पहले के भी हालात अली से पूछो। क़िबला माहे सयाम में, माहे रमज़ानुल मुबारक में अपने इमाम से मरबूत होने का क्या तरीका? बेहतरीन सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। हमें किसी लम्हे भी अपने ज़माने के इमाम से काबिल नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह। सरकार वलीउल असर सुल्तानुल असर
दिल बंद बतूल फर्जंद रसूल सुभान अल्लाह। सरकार बक़ियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह हज़रत इमाम ज़मान मौला इमाम गज़ी अलैहिस्सलाम, उन्हीं के वजूद बाबरकत की वजह से आज ये कायनात बाकी है। क्योंकि पैगम्बर अकरम का इरशाद है कि हम आले मोहम्मद में से, हम चौदह में से जब तक कोई एक रहेगा ज़मीन बाकी रहेगी। क्या बात है, वाह वाह हमारा ही वजूद ज़मीन के फर्श को कायम रखे हुए है। वाह, अगर हम में से कोई नहीं होगा तो न ये ज़मीन का फर्श बाकी रह सकता है, न आसमान का शामियाना। क्या बात है। तो इमाम ज़मान की वजह से ही आज आसमान का शामियाना भी मौजूद है और ज़मीन का फर्श भी मौजूद है, चाँद और सूरज और सारी कायनात। वाह, तो जिस इमाम की वजह से हमें ज़िंदगी मिली हुई है, वजूद मिला हुआ, और जिस इमाम के सदक़े में हमें रिज़्क़ मिल रहा है, सुभान अल्लाह। और हमें उस इमाम से गाफिल नहीं होना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि न सिर्फ ये कि हमें इमाम की के सदक़े में रिज़्क़ मिल रहा है या इमाम की वजह से कायनात बाकी और नेमतें मिल रही हैं, बल्कि रोज़े क़यामत हम अपने ज़माने के इमाम के साथ ही महसूस किए जाएंगे। सूरह बनी इसराइल में कुरान मजीद ने कहा कि यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमाम, कि उस दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। जिसका जहाँ इमाम होगा वहीं गुलाम होगा, क्या बात है, मामूम भी वहीं होगा, बाबा जहाँ इमाम होगा। क्या कहने, और इमाम भी दोनों किस्म के होंगे। रोज़े क़यामत बाबा दोनों तरह के लोगों के, दोनों किस्म के इमाम होंगे। एक वो इमाम होंगे जो जन्नत में लेकर जाएंगे, क्या बात और है, एक वो होंगे जो दोज़ख में लेकर जाएंगे। क्या बात है, जिसने दुनिया में जिसको माना, जिसके पीछे चला, वाह वाह, जिसको अपना रहबर माना, हाँ, जिसको अपना लीडर माना। तो चूँकि ये कह रही सूरह बनी इसराइल की आयत कह रही है कि हर शख्स अपने ज़माने के इमाम के साथ, क्या बात, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमाम, सब लोगों को हम उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। क्या बात, तो ये तो कुरान ने कहा है कि सब लोगों को हम उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। पैगम्बर अकरम की एक हदीस भी, जिसमें पैगम्बर गिरामी की यह हदीस ये भी बता रही है कि इमाम ज़माना की मारिफत कितना ज़रूरी है, उनको पहचानना, उनका इरफान हासिल करना, उनकी शनासाई हासिल करना, उनके मुताबिक से जो आगाही हासिल करना कितना ज़रूरी है, उनसे मरबूत होना कितना ज़रूरी है। पैगम्बर फरमाते हैं मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही फ़क़त माता मैततन जाहिलियत। अगर किसी शख्स को मौत आ जाए और जो मर जाए इस हालत में कि उसने अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल नहीं की, उसने अपने ज़माने के इमाम को पहचाना ना, तो फ़क़त माता मैततन जाहिलिया, तो ये जाहिलियत की मौत मर गया, यानी ये काफिर मर गया। जाहिलियत का मतलब ये नहीं कि ये जहालत की मौत मर गया। जहालत में और जाहिलियत में फ़र्क है। क्या बात, जहालत ज़िद होती है इल्म की, और जाहिलियत ज़िद है ईमान की। क्या बात, जाहिलियत का वाह, मतलब है वाह, कि वाह। कुफ्र की मौत मर गए, वाह वाह, शिर्क की मौत मर गए। इसीलिए तो पैगम्बर गिरामी की बेसत से पहले के ज़माने को ज़माना जाहिलियत कहा जाता है। क़ब्ल बेसत पैगम्बर का जो ज़माना है उस ज़माने को ज़माना जाहिलियत क्यों कहा जाता है? इसलिए उस ज़माने में बुत परस्ती थी, क्या बात है, कुफ्र था, वाह, शिर्क था, हाँ, इसलिए उस ज़माने को ज़माना जाहिलियत कहा जाता है। क्या तो बात, पैगम्बर अकरम फरमाते हैं कि मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही फ़क़त माता मैततन जाहिलियत, सुभान अल्लाह, कि जो शख्स मर जाए इस हालत में कि उसने अपने ज़माने के इमाम को पहचाना ना हो, तो वो कुफ्र की मौत मर जाए, क्या बात, वो काफिर मरा। यहाँ मैं थोड़ा सा रुकूंगा और मैं चंद मिनट आपके लूँगा। बिस्मिल्लाह, पहली तो ये कि पैगम्बर फरमाते हैं कि मम्मात वलम यारिफ, लम यारिफ इमामा, लम यारिफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हाँ, लम यजअल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या बात है, दो बात हैं, एक बात है अरफ़ यारिफो, जिसका मस्दर अरफन व इरफान यानी उसका मस्दर है, आरिफ और मारूफ के लफ्ज़ इसी बाब से बने। क्या बात है, एक बाब है जाअला यजअल, जहाँ से जाइल मजबूर के लफ्ज़ बनते हैं। क्या बात, ये इसका मतलब होता है जाअला यजअल का जो बाब है यानी करार देना, यानी बनाना, वाह और अरफ़ यारिफो पहचानना, वाह, बनाना और पहचानना में फ़र्क फर्क है। है, अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा वाह तो कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, वाह वाह वाह, कि मैं आदम को ज़मीन में अपना खलीफा बना रहा हूँ। क्या बात, जब दाऊद को खिलाफत दी तो कहा, यह कुरान मजीद की आयतें पढ़ रहा हूँ, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, सुभान अल्लाह, ऐ दाऊद हम तुम्हें ज़मीन में अपना खलीफा बना रहा हूँ। वाह, जब हज़रत इब्राहीम को इमाम बनाया तो इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, वाह वाह वाह, इब्राहीम मैं तुझे लोगों का इमाम बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह, तो ये मुसलसल बनाने के अल्फाज आ रहे क्या हैं। बात है, सूरह अंबिया में अंबिया के लिए कहा वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना व औहयना इलैहिम फ़िल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअ ज़कात व कानू लना आबिदीन वजअलनाहुम अइम्मतन, वाह, हमने उन्हें इमाम बनाया। क्या बात है,
ہم نے انہیں پیشوا بنایا. یہ سارے بنانے کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. واہ واہ. تو نبی اللہ بناتا ہے, خلیفۃ اللہ اللہ بناتا ہے. ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا جو بھی نمائندہ ہوتا ہے اسے اللہ ہی بناتا ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اسے بندے نہیں بنایا کرتے, واہ واہ. اسے لوگ نہیں بنایا کرتے. یعنی اللہ کی طرف سے بندوں کا جو رہبر ہوتا ہے اسے کمیٹیاں نہیں چنا کرتی, واہ واہ. اسے کوئی شورا نہیں چنا کرتی. سبحان اللہ. وہ ووٹنگ سے یا کسی مجمع میں ہاتھ کھڑے کرنے سے منتخب نہیں ہوا کیا کرتا. بات ہے. واہ واہ واہ. اسے اللہ بنایا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو بنانا اللہ کا کام ہے. آہا. اس لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مات ولم یجعل امام زمانے, واہ. جو مر جائے اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کا امام نہ بنایا. سبحان اللہ. لم یجعل نہیں کہا, کیونکہ بنانا اللہ کا کام ہے, آہا. امت کا کام نہیں ہے. کیا بات ہے. پیغمبر نے کہا مات ولم یعرف امام زمانے, واہ واہ. اور پیغمبر نے لم یجعل کو چھوڑ کر لم یعرف کہہ کر اٹل قانون دے دیا کہ امت کا کام رہبر بنانا نہیں ہے, واہ. اللہ کے بنائے ہوئے کو پہچاننا. سبحان اللہ. امت کا کام ہے کہ جسے اللہ نے امام بنایا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو پہچانو, واہ. تم اس کی معرفت حاصل کرو. تمام مات ولم یعرف امام زمانے, جو مر جائے اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا. امام زمان ہی, امام زمان ہی میں ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ واہ. امام زمانی. پیغمبر کی حدیث نے قیامت تک جانا, تو قیامت تک ہر وہ شخص کہ جس کی زبان پر یہ حدیث آئے یا جو اپنے کانوں سے یہ حدیث سنے کیا بات. وہ مراد ہے. واہ واہ. یعنی جس بھی زمانے میں پیغمبر کی یہ حدیث جو بیان کر رہا ہو یا جو سن رہا ہو, اس زمانے ہی کے ہی کے کہہ رہی ہے وہ مراد ہے. سبحان اس اللہ. ہی کا ترجمہ وہ شخص ہے قیامت تک واہ واہ. کہ جو اس حدیث کو پڑھے آہا. یا جو اس حدیث کو سنے. آہا. یعنی قیامت تک کوئی بھی شخص ہے, کوئی بھی فرد ہے جو پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے, واہ واہ. ہر زمانے کے انسان کی یہ ذمہ داری ہے واہ. کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے, سبحان اللہ. ماضی کے امام کو نہیں, اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. جب ہر دور کے انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے, تو پھر ضروری ہوا کہ ہر دور کے انسان کے زمانے میں کوئی امام زمانہ بھی ہو. کیا بات. یہ بھی تو ضروری ہے نا. واہ واہ. جب پہچاننا ہی اپنے زمانے کے امام کو ہے سبحان تو اللہ. پھر اپنے زمانے کے امام, اور اپنے زمانے کے امام سے مربوط ہونے کے لیے بہترین موسم رمضان. سبحان اللہ. سبحان اپنے زمانے کے امام سے مربوط ہونے کے لیے بہترین فصل رمضان. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی شناخت حاصل کریں, معرفت حاصل کریں, اور اپنے زمانے کے امام سے ارتباط پیدا کریں. اور میں میسج دوں گا حیدری ملٹی میڈیا کے ذریعے سے کہ آپ کے پاس ماہ رمضان بہترین موسم ہے اپنے زمانے کے امام سے مربوط ہونے کے لیے. اور پھر اب وہ شبیں آ رہی ہیں کہ جو انتہائی اہم ہیں زمانے کے امام سے مربوط ہونے کے لیے, یعنی شبہائے قدر. کیا بات. شبہائے قدر, ایک تو ہے شب قدر اور ایک ہے سورہ قدر. اور سورہ قدر جو ہے یہ رمضان کا سورہ. واہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو نازل کیا ہے شب قدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ وہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, سبحان اللہ. جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. کوئی تقریباً 83 ایئرس, 83 سال کا عرصہ بنتا ہے 1000 مہینے. اس 83 سال کی مسلسل عبادت سے افضل ہے اس ایک شب کی عبادت. کیا بات ہے. میرا خیال ہے نارمل کسی انسان کی آج کل کے دور میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. 50 55 60 65 سال عمر ہوتی ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ اب ہمارے پاس وقت کتنا ہے. میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو, یقیناً ہمارے پاس ٹائم کم ہوگا. تو یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکہ, اس شب میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا, ملائکہ اور روح اس پوری رات میں نازل ہوتے رہتے ہیں. کیا بات. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, اپنے رب کے اذن سے پوری شب نازل ہوتے رہتے ہیں. کس لیے؟ من کل امر, وہ
तो ज़मीन पर किसी उलिल अम्र का होना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, वाह, इसका वाह, वाह, मतलब वाह, है वाह, कि वाह। जब वो अम्र लेकर आ रहे हैं तो ज़मीन पर कोई उलिल अम्र है, क्या और बात जो है, वाह, ज़मीन वाह, पर वाह। उलिल अम्र है वही हमारे ज़माने का इमाम है, सुभान और उसी अल्लाह। की इताअत हम पर वाजिब है। और शब क़द्र में जहाँ दूसरे आमाल करें वहाँ इमाम ज़माना की दुआ भी पढ़ें और इमाम ज़माना से इस्तिग़ासा भी करें, सुभान क्योंकि ये शब इमाम से मरबूत होने के लिए बेहतरीन मौसम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुहतरम, प्रोग्राम रमज़ान है ईमान ने वाजिबुल एहतराम अल्लामा शफीउल हसन ताहिरी साहब अपने रूहानी बयान से आप मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। आज के हमारे टाइम का वक्त जो है वो ख़त्म होने के करीब तक होता चला जा रहा है, और हमारे दरमियान शहर कराची की एक नामवर आवाज़ भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ क्योंकि ज़िक्र इमाम ज़माना से महफिल सजी हुई है, और इसकी खुशबू को मज़ीद मुअत्तर कर देता हूँ कि जो नहीं जानते वो जाने तो क्या कह देंगे, हम तो वाकिफ़ हैं इमाम दो सारा कह देंगे। अरे डर है उनका जो है दीदारे खुदा के कायल, तुमको देखा नहीं देखा तो खुदा कह देंगे। हमारे दरमियान शहर कराची की मुल्क पाकिस्तान की नामवर और ख़ूबसूरत लबो लहन के कारी जनाब सिकंदर ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमा है, और हम जनाब सिकंदर ज़ैदी साहब की इस जानिब चलते हैं और उनसे इमाम ज़माना की शान में कलाम सुनते हैं। जी सिकंदर भाई। एक इमाम की बारगाह में एक दुआ भी है, इस्तिग़ासा भी है, बिस्मिल्लाह। और जी करता हूँ। जैसा कि आप सामीन समात फरमा रहे हैं, तबला की गुफ्तगू से महसूस हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह जहाँ 10,000 लोग देखें और 10 लाख लोग देखें, उसमें 2 लोग भी, 2 अफराद भी, 2 शख्सियात भी अगर इस पर इम्प्लीमेंट करें बिल्कुल बेशक, तो आलिम की मेहनत सवारत हो जाती है। और इसी तरह ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बारगाह इमाम ज़मान सलाम में ये कलाम पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल ताज़ा कलाम है, पहली मरतबा रब्त लिया है मैंने इस गुफ्तगू से, और अतर भाई की गुफ्तगू से 4 मिसरों से रब्त देते हुए ये कलाम पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। चले आओ कि अब आँखें मेरे पत्थर न हो जाएं, चले आओ कि अब आँखें मेरे पत्थर न हो जाएं, सुभान अल्लाह। मेरे मौला मेरे आंसू कहीं बेघर न हो जाएं, चले आओ कि अब आँखें मेरे पत्थर न हो जाएं, अरीज़ा इसलिए जल्दी से मैंने लिख दिया मौला, क्या बात है। अरीज़ा इसलिए जल्दी से मैंने लिख दिया मौला, रे कहीं दरिया से सारी मछलियाँ बाहर ना जाएं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कहीं दरिया से सारी सुभान अल्लाह। मछलियाँ बाहर ना जाएं, चले आओ कि अब आँखें मेरे पत्थर न हो जाएं। खुसूसियत से ये 2 अशार एक तसलसल से पेश कर रहा हूँ। आजकल के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इस मामले में मैं शेर पेश कर रहा हूँ, आप तमाम हज़रात समझ जाएंगे। और बिलखुसूस हमारे उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं, हम हमारे सरों पर खुदा उलमा हक़ का साया रखे। जो इस वक्त एक बहुत ही मामलात ख़राब हुए हैं, खुदा इस वबा को हमसे दूर फरमाए। पेश कर रहा हूँ। हाँ, कुछ अपने लोग भी गैरों में शामिल हो गए अब तो,
کچھ اپنے لوگ بھی غیروں میں شامل ہو گئے اب تو، جو رہزن ہیں وہی اب قوم کے رہبر نہ ہو جائیں، جو رہزن ہیں وہی اب قوم کے رہبر نہ ہو جائیں، چلے آؤ۔ اور خصوصیت سے یہ شعر جو میں نے چنا ہے بطور خاص اپنے سامعین کی نظر کرتا ہوں، علماء کرام سے بطور خاص قبلہ سے دعاؤں کا طالب ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ ہاں ہم اپنے عالموں کی یوں بھی تو تعظیم کرتے ہیں، کہیں ناراض ہم سے نہ کرو جفا، لے آؤ کہ اب آنکھیں میری پتھر نہ ہو جائیں۔ یہ بھی شعر حالات حاضرہ کی نظر کر رہا ہوں بطور خاص۔ بسم اللہ بسم اللہ تب۔ عزاداری رسمن اور نمازوں سے بھی غفلت ہے، عزاداری رسمن اور نمازوں سے بھی غفلت ہے، مسلط پھر سے اہل حق پہ اہل شر نہ ہو جائیں، مسلط پھر سے اہل حق پہ اہل شر نہ ہو جائیں، چلے آؤ کہ اب آنکھیں میری پتھر نہ ہو جائیں۔ پتھر بھائی کلام میں نے پیش کیا، اور اس لیے کہ 2-3 اشعار اس میں ایسے تھے کہ جو حالات حاضرہ پر محیط تھے، میں نے قبلہ کی اجازت پیش کی، ایک کلام سے 2-3 اشعار اور آپ کی اجازت پیش کر رہا ہوں بارگاہ امام عصر الاسلام میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مفصل بیان آپ قبلہ سے انشاءاللہ فرمائیں گے اور آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ میں پیش کر رہا ہوں بسم اللہ۔ کہ مدت غیبت اگر کچھ مختصر ہو جائے گی، کہ شام کی ظلمت چھٹے گی اور سحر ہو جائے گی، شام کی ظلمت چھٹے گی اور سحر ہو جائے گی، ان کے آنے تک نہیں دنیا کا کوئی اعتبار، ان کے آنے تک نہیں دنیا کا کوئی اعتبار، ان کے آتے ہی یہ دنیا معتبر ہو جائے گی، ان کے آتے ہی یہ دنیا معتبر ہو جائے گی۔ ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ یہ ماہ صیام ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے امام سے آپ ربط رکھیں اور امام کی مدح فرمائیں، امام کے آمد کے وہ لمحات جس میں کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں امام زمان اسلام کے ساتھ محشور فرمائے اور امام زمان اسلام کی اطاعت نصیب فرمائے۔ بطور خاص یہ شعر اسی ضمن میں پیش کر رہا ہوں، اسی تناظر میں پیش کر رہا ہوں کہ زندگی کر دی ہے ہم نے اس لیے بھی ان کے نام، زندگی کر دی ہے ہم نے اس لیے بھی ان کے نام، نام ان کے ہوگی تو اچھی بسر ہو جائے گی، نام ان کے ہو
होगी तो अच्छी बसर हो जाएगी। और ये भी हमारी तमन्ना है और इंशाल्लाह होगा। बतौर ख़ास किबला शेर देखिएगा, पेश कर रहा हूँ कि खाने काबा पे लहराएगा गाजी का लम, खाने काबा पे लहराएगा गाजी का लम। क्या बात है। इस तरह सुफियानियत भी दर बदर हो जाएगी। वाह 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 वाह, इस सुभान अल्लाह, तरह सुभान अल्लाह। सुफियानियत भी दर बदर दर बदर हो जाएगी। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम शायर ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब के कलाम से मैंने चंद अशार पेश किए कि जा नमाज़े मेहदिए दी बिछने दो पानी पर तुम। क्या बात है। जा नमाज़े वाह, 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 वाह। मेहदिए दी बिछने दो पानी पर तुम। कौन है पानी में कितने सब खबर भाई क्या अच्छा है। हो जाएगी। वाह, 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 वाह। कौन है पानी में कितने सब खबर हो जाएगी। क्या बात है। तमाम से दुआ, मोहतरम नाज़रीन तमाम से दुआ। मोहतरम जनाब सिकंदर ज़ैदी साहब बारगाह इमाम ज़माना में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस्तग़ासा पेश फरमा रहे थे। और नाज़रीन मोहतरम, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले हमारा एक बहुत ही अहम सवाल हम क़िबला की खिदमत में रख रहे हैं कि क़िबला दौर हाजिर में ऐद हाजिर में इमाम ज़माना के ज़हूर की निशानियाँ जो हैं वो किस हद तक नुमायाँ हो गई, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन है। तवाफ़ खाना काबा रुक चुका है, मसाजिद के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दिया है। तो क्या ये इमाम ज़माना के ज़हूर की निशानियाँ हैं? क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन ये बहुत एक अहम सवाल है जो हम क़िबला की खिदमत में पेश कर रहे हैं। अलामात से मुताबिक सवाल इसके लिए इंशाअल्लाह फिर किसी ऐसी नशिस्त में जिसमें ज़्यादा वक्त होगा। जी। अलामात की किस्में हतमी गैर हतमी अलामतें जो हैं, अलबत्ता अमूमी तौर पर मैं इतना अर्ज़ करता चला जाऊँ कि कुछ चंद एक ऐसी अलामतें कि जिन्हें तकरीबन सब ने अपनी किताबों में लिखा तस्लीम किया है कि ज़रूर से पहले इस तरह की अलामतें ज़ाहिर हुई, वो काफ़ी तादाद में ज़ाहिर हो चुकी हैं। मसलन के फितने बढ़ जाएंगे, फसादात बढ़ जाएंगे और वो बढ़ ही चुके हैं। बेचैनियाँ बढ़ जाएंगी, वो बढ़ चुकी हैं। कुछ तो खून बढ़ जाएगा, तब तो गारतगरी बढ़ जाएगी, इंसानी जान का कत्ल मामूली बात समझी जाएगी। और ये तकरीबन हो ही रहा है। पूरी दुनिया के अंदर किसी इंसान के कत्ल को मामूली समझा जाता है और इंसानी जान की कीमत को बहुत ही उसकी कोई अर्जिश लोगों के पास नहीं रहेगी। इसी तरीके से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अदल इंसाफ कम हो जाएगा, ये अलामतें हैं। और तलाक़ की शरह बहुत बढ़ जाएगी। और आप देख लीजिए इस वक्त के माशरे के अंदर, पूरी दुनिया के माशरे में तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये इमाम के ज़हूर की अलामतों में से एक अलामत है कि ज़हूर के नज़दीक का जो ज़माना है उसमें बिल्कुल तलाक़ की शरह बढ़ चुकी होगी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, गली गली में फितने होंगे, कुछ तो खून मामूली बात होगी, और मर्द औरतों के जैसे और औरतें मर्दों जैसे लिबास पहनेंगे, वो भी हो रहा है। ये अलामत तो पूरी हो जाती है अगर चंद अफराद भी करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि पूरे माशरे के तमाम अफराद ही ऐसा करेंगे। और ऐसा हो रहा है कि आप देखेंगे ऐसे मर्द हैं कि जो औरतों वाला लिबास पहनते हैं, ऐसी ख़वातीन भी हैं कि जो मर्दों वाला लिबास पैंट शर्ट वगैरह इस तरह का लिबास पहना जा रहा है। ये भी इमाम के ज़हूर की अलामतों में से है। और ख़वातीन मर्दों का रूप बनाएंगी अपने लिए, इस तरह के बालों की स्टाइल है वो भी हो रहा है, मर्द औरतों की तरह। और मैंने देख भी लिए हैं कुछ ऐसे अफराद के जो चुटिया वगैरह बना रहे हैं और इस तरह के स्टाइल बना रहे हैं कि वाक़ई ये हो रहा है। ये भी इमाम के ज़हूर की अलामतों में से कि इमाम के ज़हूर का ज़माना जब ज़हूर के नज़दीक के ज़माने में ये अलामतें ज़ाहिर होंगी। ये अलामतें तकरीबन ज़ाहिर हो चुकी हैं और कुछ और भी अलामतें हैं। बहरहाल अलगर्ज़ किया कि वक्त की कमी है, मैं अभी तफसील में नहीं जाता। अलामात एक अलग मौजू है। हम देखते हैं अलामात की रोशनी में हमें अंदाज़ा होता है कि ज़हूर का ज़माना अब ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है और हर इंसान को उसके लिए अपने आप को तैयार है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम। आज के हमारे प्रोग्राम रमज़ान ईमान का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना सैयद शब्बीर हुसैन ताहिरी साहब से कि हम तहे दिल से ममनून
शकीर हैं, नामवर सना गुजार से पास गुजार और खूबसूरत तरुलहन के कारी जनाब सिकंदर ज़ैदी साहब, हम आप दोनों मेहमान गिरामी का हैदरिया मल्टी मीडिया की जानिब से बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारी खिदमत में हाजिर हुए। नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह सवालात का सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। कारियान मरतबत इसी तरह क़िरत फरमाते रहेंगे। नात खान बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने नजराने पेश करते रहेंगे। मेज़बान अतहर जाफ़री आपसे इजाज़त चाहता है। तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को, हैदरिया मल्टी मीडिया के तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।